So, am I audible? Yes. Yes, ma'am. Okay. Thank you. So, first of all, good afternoon, everyone. It's evening now. Good evening, everyone. So, hope you all are well. And before just starting the new chapter, I just want to know how many chapters are done in biology. Yeah. Any of you just unmute yourself and just load and let me know. Any one of you. Yes, any one of you. Either can be a Sonali, Pretty, any one of you just unmute yourself and let me know the chapters that had been done or that had been completed by the other sir. So that accordingly I can start. Yes, as you need to speak up. Ma'am, 8 chapters. No, ma'am. Just a minute. Yeah. Yes, ma'am, 8 chapters are done. Total. 8 chapters total. So first 4 we had completed, right? And then we now 6th chapter we had completed. I had done with the principal basis of inheritance as well as the molecular basis of inheritance, right? And then sir done with one chapter, that is human health and disease. So which is the other chapter that is done by him? Ma'am, chapter number 9, strategies for enhancement in food production. So did he is with that chapter or he had completed the chapter? Ma'am, sir has completed that chapter. All right. So means yeah, they and yeah, strategy enhancement wala are done, right? And then human health and disease is also done. So now we are left with the 4, 2, and yes. So biotech 2 chapters are remaining, and environment wala 4 chapters are remaining. So we are left with 6 chapters, I guess, right? Right? Yes, ma'am. Okay. So now what I'm planning is like we are left with 1 month as per our plan, and we have to finish these chapters, 6 chapters. 6 chapters are remaining, right? Just check it once, except evolution. Evolution, I'm going to complete it. So after that, you're left with biotech 2 chapters and 4 chapters of the fourth part, that is of environment wala. Right? Just check it once from your book and let me know. I guess you are checking it and let me know whether I'm right or not. Yes, Yes, ma'am. right. So, usually when sir takes class, is he takes on Sunday or some other day? Ma'am, on Friday usually. So, you guys are free on Friday, right? So usually biology class takes place on Friday, right? Yes, ma'am. Okay. So, just for your knowledge, before starting this chapter, I just want to tell you if you all are familiar with the news that now in NDA, girls are also eligible. So it's a good opportunity for those girls who wanted to serve in Indian Armed Forces and they wanted to go into NDA. So from the coming NDA, that is on 14th of November, that time women, girls can also
attempt that exam, those who are interested. So it's a good opportunity for the girls. Those who are interested can give that exam, right? So this is the news that I wanted to share, and thank you so much. Like today's Teachers Day. So what my wishes to you all is that whatever dream you dreamed of, I wish that all your dreams come true, right? So this is what I wanted to tell you all. So now we'll go with the chapter. That is the name of the chapter is evolution. So generally, if we see this evolution का थोड़ा part we had done till our 10th level. What was that? That is what homogeneous, what are homologous organs, what are analogous organ. These are some of the part we had done during our 10th level basis we had done. So now it is the time we should know some little more about this thing. So eवोल्यूशन में जनरली हम क्या पढ़ते हैं कि हमारे अर्थ का ओरिजिन कैसे हुआ है, हाउ वी कम ऑन दिस अर्थ, हाउ दिस अर्थ फॉर्म. सो वी अगर देखा जाए तो एग्जैक्टली कोई भी इसका आंसर जवाब नहीं दे सकता, बट वी कैन गिव द प्रेडिक्शन लगा के पता किया जा सकता है. जो साइंस है उनके बेसिस पे हम पता कर सकते हैं, जो एविडेंसेस हमें मिलते हैं उनके बेसिस पे हम पता कर सकते हैं कि क्या हुआ होगा, हाउ दिस अर्थ वाज फॉर्म. सो या अर्थ से पहले यूनिवर्स का ओरिजिन. सो एवोल्यूशन का देखा जाए तो लेवल इस 12th लेवल के बेसिस this is not too much about the evolution, because evolution का जो मेन बुक है उसका 2 पेजेस ही है, दिस चैप्टर ओनली. सो आप लोगों को बहुत बेसिक से नॉलेज दी जाएगी इस चैप्टर में कि what are the different theories just put up by the different scientists, what are their assumptions, how this universe had formed, right? So this is all we're gonna study about the about evolution. So generally, if I start with the introduction, so introduction में we first come across with the word that is called origin of universe. तो जो यूनिवर्स जिसको हम ब्रह्मांड बोलते हैं, तो ब्रह्मांड का निर्माण किस तरह हुआ. तो यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट आपका मेंशन क्यों है कि स्टेलर डिस्टेंसेस मेजर्ड इन लाइट ईयर्स. लाइट ईयर का मतलब होता है कि अगर स्टेलर मतलब स्टार और मून के स्टार और सन के बीच का डिस्टेंस हो, या अर्थ और सन के बीच का डिस्टेंस हो, दिस इज कॉल्ड द स्टेलर डिस्टेंस. एंड ये जो स्टेलर डिस्टेंस है जनरली किस में मेजर किया जाता है, लाइट ईयर्स में मेजर किया जाता है. ऐसा प्रिडिक्शन है कि जो हमारा अर्थ बहुत पुराना है और सम ऑलमोस्ट लाइक 20 बिलियन ईयर्स ओल्ड. सो ये जो 20 बिलियन ईयर ओल्ड है, ये कुछ माइन्यूट टर्म्स रहते हैं जो आपको दिमाग में रखना होता है, स्पेशली फॉर नीट एस्पिरेंट्स, बिकॉज ये उनका एक क्वेश्चन बन जाता है. ठीक है. तो सबसे बहुत ही फेमस थ्योरी जिसको हम बोला जाता है बिग बैंग थ्योरी, जिसके बेसिस पे हम लोग ये बिग बैंग थ्योरी कुछ तो बताती है अर्थ के बारे में. वो हमें बताती है कि अर्थ कब बना होगा. सो वो एक्चुअली में हुआ क्या होगा, किस तरह से क्या ऐसा हुआ होगा जिसके कारण एक छोटा सा प्लैनेट जिसे हम अर्थ बोलते हैं वो फॉर्म हुआ होगा. तो जो एक साइंटिस्ट है जिन्होंने बिग बैंग थ्योरी दी है, तो वो बिग बैंग, हमें ये जानना जरूरी नहीं है कि वो साइंटिस्ट कौन है, बट हमें ये जानना जरूरी है कि उस बिग बैंग थ्योरी के अंदर उन्होंने क्या बोला कि हाउ दिस यूनिवर्स फॉर्म के बाद अर्थ कैसे बने और अदर प्लैनेट्स कैसे बने. तो दिस इज व्हाट दे हैव गिवन. उन्होंने ये बताया कि यूनिवर्स गेट एक्सपेंडेड, और एक्सपेंड होने के कारण क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ जाएगा. टेम्परेचर बढ़ने के कारण या टेम्परेचर कम होने के कारण क्या होने लगा कि वहाँ पे 2 गैसेस का एवोल्यूशन हुआ, या वी कैन से प्रोडक्शन हुआ, दैट इज हीलियम एंड हाइड्रोजन. दिस इज इम्पोर्टेंट बिकॉज दे जनरली आस्क
Okay. Guys, I guess my screen is visible to everyone. Hello. Yes. Okay. So then what happens? आप जैसे जब एवोल्यूशन हुआ दो कौन सी दो गैसेस फॉर्म हुई, हाइड्रोजन एंड हीलियम दो गैसेस फॉर्म हुई। तो जब ये गैसेस फॉर्म हुई तो इनका कंडेंसेशन होता है, इवेपोरेशन में वेपर्स के फॉर्म में इवेपोरेट होते, कंडेंसेशन में it that vapors converted into what, that vapors converted into droplets के फॉर्म में। so what happens कि जब ये गैसेस जब कंडेंस्ड हुए तो कंडेंस्ड किसके अंदर हुए, ग्रेविटेशन के अंदर हुए एंड दे फॉर्म्ड गैलेक्सीज अब गैलेक्सीज, देयर आर सो मेनी गैलेक्सीज इन आवर यूनिवर्स, राइट। सो उनमें से एक गैलेक्सी है जिसमें हम लोग एग्जिस्ट करते हैं, दैट इज मिल्की वे गैलेक्सी। तो हमारी गैलेक्सी को क्या बोला जाता है, मिल्की वे गैलेक्सी। solar system is of what galaxy, that is of Milky Way galaxy, right? Okay, so this is also important कि Big Bang theory के according हमारा अर्थ जो formed है that is 4.5 billions. Okay, but you should also know how the universe कितना old है, that is 20 billion years old, right? Now see, this chapter में आप लोगों को जस्ट आप लोगों को बहुत ज़्यादा स्ट्रेस नहीं करना है। इस चैप्टर में आप लोगों को बस समझना है कि कौन सी क्या क्या कंडीशंस थी, किसी ने अगर एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया है तो किस कंडीशन पे परफॉर्म किया है, यही सब आपको यहाँ पे समझना है। अर्थ कब फॉर्म हुआ था, यूनिवर्स कब फॉर्म हुआ था, कितने साल में फॉर्म हुआ था, ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको माइंड में रखनी है। हाँ, थोड़ा बहुत ये आपके लिए बोरिंग थोड़ा लगेगा, बट आप लोगों को क्या करना है कि अभी की पॉइंट्स पे फोकस करना है। सो हम लोग ना इसको एक स्टोरी की तरह लेके चलेंगे। अभी हमें पता चल गया कि अर्थ 4.5 बिलियन ईयर्स पहले फॉर्म हुआ है अकॉर्डिंग टू बिग बैंग थ्योरी। तो जब अर्थ फॉर्म हुआ होगा तो क्या उस समय एटमॉस्फेयर होगा, तो ऐसा कहा जाता है कि जब अर्थ फॉर्म हुआ था ना तो वहाँ पे कोई एटमॉस्फेयर नहीं था। तो फिर ये एटमॉस्फेयर का कैसे अराइज हुआ, तो फिर धीरे धीरे क्या हुआ कि यहाँ पे ऐसे कुछ लाइक वाटर वेपर, आई जस्ट हाईलाइट इट एंड लेट यू नो अबाउट इट। हाँ, तो जब हमारा अर्थ फॉर्म हुआ तो अर्थ पे कोई एटमॉस्फेयर नहीं था। जैसे अभी हम लोग मार्स की बात करते हैं ना, मार्स पे कोई एटमॉस्फेयर नहीं था। अब क्या बोला जा रहा है कि मार्स पे भी एटमॉस्फेयर है, मार्स पे भी लाइफ एग्जिस्ट हो सकती है। तो कुछ तो एविडेंसेस मिले होंगे ना जिसके बेसिस पे हम बोल सकते हैं कि देयर कैन बी द एग्जिस्टेंस ऑफ द और ये और ह्यूमंस। सो वो एविडेंसेस हमारे अर्थ के ओरिजिन के समय भी मिले होंगे। सो दैट व्हाट वर द एविडेंसेस, तो क्या हुआ था, लाइक वाटर वेपर्स हो गया, मीथेन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, ये जो चीजें हैं लाइक हाँ, so no, wait a second. So ये जो चीजें है ना इनके बेसिस पे हम तो क्या हुआ, हमें वाटर वेपर मिले, हमें मीथेन गैस मिला, हमें कार्बन डाइऑक्साइड मिला, हमें अमोनिया मिला। सो ये जो चीजें थी इन्होंने हमारे अर्थ को हमारे अर्थ के चारों ओर ये थी, ठीक है। तो क्या हुआ कि ऐसा प्रिडिक्शन है कि उन्होंने ये यूवी रेज जो है, यूवी जो सन से यूवी रेज आती है, वो उन्होंने क्या किया, हाइड्रोजन वाटर जो है दैट इज H2, वाटर का क्या फॉर्मूला होता है H2, तो उन्होंने क्या किया, वाटर को ब्रेक डाउन किया। ब्रेक डाउन किसमें हो, दो ही चीजों में हो सकता है, आइदर कैन बी हाइड्रोजन आइदर कैन बी ऑक्सीजन।
So they break the water into hydrogen and oxygen, right? And then what happened that oxygen जो escaped हुआ था, जो निकल चुका था, जो break down हो चुका था, वो किसके साथ कंबाइन हुआ? अमोनिया के साथ कंबाइन हुआ, मीथेन के साथ कंबाइन हुआ, और फिर क्या फॉर्म हुआ? वाटर फॉर्म हुआ, CO2 फॉर्म हुआ, दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर गैसेस, ठीक है। तो ये जब चीजें कंबाइन होके फॉर्म्ड हुई, तो वहां पे जो हमारे अर्थ के अराउंड जो है एक लेयर फॉर्म्ड होती है, उस लेयर को क्या बोलते हैं? ओजोन लेयर। एंड वी ऑल नो दैट व्हाट इज द रोल ऑफ ओजोन लेयर। जो हार्मफुल यूवी रेज है उनको हमारे अर्थ पे आने से रोकती है, ये काम होता है ओजोन लेयर का, जो कि अभी जिसकी हालत हम सबको पता है कि कितनी बुरी हो गई है। नाउ जैसे वो वाटर वेपर्स जो इवेपोरेट हो रहे थे, ठंडे होने के बाद दे स्टार्ट कंडेंसिंग। तो कंडेंसेशन में क्या होता है कि वो ड्रॉपलेट्स का फॉर्म लेते हैं और वो एज अ रेनफॉल करते हैं, ठीक है। एंड रेनफॉल होने से जो अर्थ पे, ऐसा नहीं है कि हमारा अर्थ पूरी तरह से प्लेन है, देयर आर सो मेनी कर्व्स, राइट। सो उनमें बहुत सारे गैप्स है, तो वो गैप्स हैं जो भी डिप्रेशंस है, तो वो डिप्रेशंस जब वाटरफॉल हुआ, तो वाटरफॉल होने के कारण जो वाटरफॉल मतलब रेन जब हुआ, तो रेन के फॉर्म में वो डिप्रेशंस फिल हुए, एंड दैट डिप्रेशंस कन्वर्टेड इनटू ओशंस, रिवर, लेक्स एक्सेट्रा। अभी देखो, ये तो प्रेडिक्शन था किसी का कि अर्थ इस तरह बना होगा। अभी यहाँ पे एक और प्रेडिक्शन आया, और जैसे बिग बैंग थ्योरी है उसी तरह किसी ने तो ओरिजिन ऑफ लाइफ करके थ्योरी दी हुई है। सो व्हाट दैट थ्योरी स्टेट, वो बोलते हैं कि लाइफ जो है अर्थ पे, लाइफ 500 मिलियन ईयर्स पहले, मिलियन ईयर्स बाद आई थी अर्थ के फॉर्मेशन के बाद, ठीक है। तो अभी देखो, थ्योरी ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ के अंडर देयर इज वन थ्योरी जिसको हम बोलते हैं थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन। उनका कहना क्या है? उनका कहना ये है कि भगवान ने इस संसार को बनाया है, भगवान ने इस धरती को बनाया है। ऐसा कौन कहता है? ऐसा थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन कहता है। अब देखो, थ्योरी ऑफ पैनस्पर्मिया या कॉस्मोजोइक थ्योरी, ये क्या कहती है? ये हमें ये कहती है कि जो अर्ली ग्रीक थिंकर्स थे वो कहते थे कि जो यहाँ पे एक चीज आई नीड टू करेक्ट इट, दिस इज या स्पोर्ट्स या। सो ये क्या है कि वो थिंकर्स ये कहते थे कि जो हमारी लाइफ है वो स्पोर्स से बनी हुई है, और ये जो स्पोर्स जो है वो किसी और स्पेस, मतलब स्पेस से किसी और गैलेक्सी से या स्पेस से डायरेक्टली किसी गैलेक्सी में, मिल्की वे गैलेक्सी में आया और उन्होंने हमारा अर्थ फॉर्म किया, ठीक है। और फिर ये डिफरेंट डिफरेंट प्लैनेट्स में गए, ठीक है, इंक्लूडिंग द अर्थ। और थ्योरी ऑफ पैनास्पर्मिया आज भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक बन गया है, बिकॉज कहीं ना कहीं यहाँ पे लिंक है, राइट। ओ और फेमस थ्योरी है जिसके बारे में थोड़ा सा डीप में हम लोग पढ़ेंगे, दैट इज थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन। थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन, ये जो है ये भी किसी साइंटिस्ट ने दी है। उनका मानना क्या था? उन्होंने बोला कि जो ये डेथ एंड डिकाइंग मैटर होता है या रॉटन मैटर होता है, लाइक स्ट्रॉ हो गया, मड हो गया, इनसे लाइफ का ओरिजिन हुआ है। दिस इज कॉल्ड थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन। उनके कहने के मुताबिक जो लाइफ का एग्जिस्टेंस, लाइफ फॉर्म्ड फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग लाइफ। बट यहाँ पे तो क्वेश्चन ये है कि लाइफ पे, इस अर्थ पे सबसे पहले लाइफ का एग्जिस्टेंस हुआ होगा, तो वो लाइफ कैसे बनी होगी? ये तो बोल रहे हैं ना कि अगर लाइफ जो है वो प्री एग्जिस्टिंग लाइफ से बनी हुई है,
तो ये बिट ऑफ कंफ्यूजिंग टाइप था। सो ये वॉयलिन नाम का एक साइंटिस्ट है। व्हाट ही डिड, उन्होंने एक प्री स्टेरिलाइज टैंक लिया और जिसमें उन्होंने क्या बोला कि जब मैं इस फ्री टैंक में उन्होंने क्या किया, एक टैंक में उन्होंने दोनों में रॉटन माटर डाला और एक को क्लोज्ड कर दिया एंड एक को उन्होंने ओपन टू द एयर, ठीक है। एंड ही ऑब्जर्व दैट कि जो डेड डिकाइंग रॉटन मैटर था उसमें से न्यू लाइफ का फॉर्मेशन हो रहा, दैट इज इन द प्रेजेंस ऑफ एयर। तो इससे क्या हुआ कि जबकि उनका बोलने का मतलब था कि जो मरा हुआ है उससे कैसे एक लाइफ एग्जिस्ट हो सकती है, तो फिर क्या हुआ कि इस थ्योरी को कोई भी रिलायबल रीजन नहीं प्रोवाइड कर पा रहा था, इसीलिए इस थ्योरी को हम लोगों ने क्या किया, डिस्प्रूव कर दिया। एक नई थ्योरी आई जिसको बोलते हैं थ्योरी ऑफ केमिकल एवोल्यूशन, या ठीक है। सो इस थ्योरी में क्या हुआ कि एक साइंटिस्ट है जिनका नाम है ओपेरॉन जो रशिया के हैं, उन्होंने क्या किया, उन्होंने बोला कि लाइफ जो है प्री एग्जिस्टिंग लाइफ से आई है, ना कि किसी लिविंग ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल दैट इज आरएनए, डीएनए या प्रोटीन से आई है। तो उन्होंने जब एक्सपेरिमेंट प्रूफ किया, तो प्रूफ करवाने की कोशिश की, तो उन्होंने क्या बोला कि जो लाइफ बनी है वो जो है दैट इज फॉर्म्ड फ्रॉम द इनऑर्गेनिक कंस्टिट्यूएंट। अब इनऑर्गेनिक कंस्टिट्यूएंट कैन बी नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, इन सब के कॉम्बिनेशन से प्रोटीन्स बने हैं और प्रोटीन से फिर डीएनए बना है और डीएनए से फिर इधर बैक्टीरिया बने हैं, प्रोटिस्टास बने हैं और ऐसे लाइफ का अराइज या बर्थ हुआ है। तो यहाँ पे जो बहुत जिसको रीजंस दे पाया, मतलब ऐसा होता है ना कि अगर आप लोगों ने देखो रिसर्च फील्ड में क्या होता है, अगर आप लोगों ने कोई डिस्कवरी की है तो, या साइंस की बात, या अगर मैं केमिस्ट्री की बात करूँ, फिजिक्स की बात करूँ या बायोलॉजी की बात करूँ, इन तीनों में क्या होता है, इफ यू हैड परफॉर्म्ड एनी ऑफ द एक्सपेरिमेंट और अगर आपने कोई रिजल्ट पाया है, तो आपको जब तो उस रिजल्ट को वैलिड करने के लिए आपको ये आपका एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करना पड़ता है बहुत सारे बाकी जो साइंटिस्ट होते हैं उनके सामने। फिर जो भी क्वेश्चन उनका अराइज होगा उस क्वेश्चन के आंसर आपको देने होते हैं और वो आंसर भी इस तरह होने चाहिए दैट इज टू बी जस्टिफाइड बाय द man who had asked this question. If that man is justified and if you are able to provide the valid reason or proof for that answer, तो फिर आपकी रिसर्च को या आपकी एक्सपेरिमेंट को एक वैलिड सर्टिफिकेट मिलता है कि हाँ ऐसा भी हो सकता है। लेकिन अगर नहीं होता है तो वो उसको रिजेक्ट कर दिया जाता है, ठीक है। रिसर्च फील्ड में जनरली ये होता है। तो अभी क्या हुआ कि यूरे और मिलर दो साइंटिस्ट हैं, उन्होंने भी एक्सपेरिमेंट किया ओरिजिन ऑफ लाइफ के बेसिस पे। तो उन्होंने क्या बताया आगे आप स्ट्रक्चर भी देखेंगे। तो उन्होंने बताया कि जो अर्थ के फॉर्मेशन के लिए या लाइफ ऑन अर्थ के फॉर्मेशन के व्हाट वर द कंडीशंस। तो उन्होंने बोला पहली कंडीशन ये है दैट इज ऑफ हाई टेम्परेचर, दूसरी कंडीशन ये है वॉल्केनिक स्ट्रोम कि हाई टेम्परेचर होने के कारण वॉल्केनिक स्ट्रोम आई होगी और उससे जो एक्सप्लोजन हुआ होगा उससे उसके डिस्ट्रॉय करने के बाद जो फॉर्म्ड हुआ होगा उनमें से एक चीज होगी अर्थ होगी, ऐसा उन्होंने बोला। फिर उन्होंने बोला कि ये उनके प्रेडिक्शंस थे और पता है इन प्रेडिक्शन के बेसिस पे उन्होंने ये स्टिमुलेटेड मतलब कंडीशंस प्रोवाइड करके उन्होंने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया और वो एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल हुआ, इसीलिए उसके बेसिस पे उन लोगों ने ये रखा कि दैट इज कि केमिकल एवोल्यूशन इज द रीजन बिहाइंड द ओरिजिन ऑफ द अर्थ। सो उन्होंने बोला रिड्यूसिंग टेम्परेचर फॉर गैसेस लाइक
methane, ammonia. Now, what Miller and Urey did is that they created the similar condition जैसे मैंने आपको बताया, and then उन्होंने ये कंडीशंस एक इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज क्लोज्ड फ्लास्क में परफॉर्म की थी, जिसका टेम्परेचर उन्होंने कितना बढ़ा दिया, 800 डिग्री सेल्सियस बढ़ा दिया. ठीक है, द सेम टेम्परेचर दैट वाज at the earth when it is in primitive state. So what they did, they used methane, they used hydrogen, they used ammonia, and into a flask for a week. And then उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया कि इन ये जो तीनों गैसेस उन्होंने ऐड किए लाइक अमोनिया, हाइड्रोजन एंड मीथेन, इनके कॉम्बिनेशन से दे ऑब्जर्व दैट देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ अमीनो एसिड. अगर हमें पता चल गया कि अमीनो एसिड बन रहे, फिर तो आगे का काम बहुत इजी हो जाएगा ना, प्रेडिक्ट करना कि लाइफ का ऑरिजिन या लाइफ का बर्थ कैसे हुआ, क्योंकि अमीनो एसिड इज व्हाट, अमीनो एसिड्स से ही तो प्रोटीन बनता है, और अगर प्रोटीन बन रहा है इसका मतलब डीएनए बन रहा है, और डीएनए बन रहा है इसका मतलब कहीं ना कहीं वो चीज जो है लिविंग है, ऑर्गेनिज्म है. ठीक है, सो उन्होंने क्या एविडेंसेस दिए, उन्होंने एक्सपेरिमेंट तो बता दिया कि कौन सी कंडीशंस लगाई उन्होंने, एंड देन ही गिव द एविडेंसेस. उन्होंने जब एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया यूरेज एंड मिलर ने, तो उनको ये कुछ रिजल्ट्स मिले जिनको उन्होंने एविडेंसेस के फॉर्म में प्रेजेंट किया. ठीक है, सो उन्होंने बोला यहाँ पे Miller observed the synthesis of amino acid that is found similar in organic chemicals in stimulated conditions. Also, he observed formation of sugars. Like obviously, अगर amino acids formed हुए हैं, then sugar हो गया, nitrogen bases हो गया, pigments हो गया, fat हो गया, ये भी उन्होंने ऑब्जर्व किया कि ये भी चीजें फॉर्म हो रही थी. जब उन्होंने 1 वीक के लिए उसको रखा, तो 1 वीक के लिए ही ऑब्जर्व्ड ओनली फॉर्मेशन ऑफ अमीनो एसिड. सो ही थॉट दैट कि लाइफ, तो ये तो हम लोगों ने एक्सपेरिमेंटली प्रूव्ड किया है, ये टेम्परेचर तो मिलियंस एंड थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स से एज इट इज रहा होगा. तो इस टेम्परेचर के अंडर में एक्सेप्ट अमीनो एसिड और भी तो चीजें बनी होगी. सो दोस और भी द चीजेस और आर शुगर, नाइट्रोजन बेसिस, पिगमेंट एंड फैट. उन्होंने ये भी बोला कि ये यही सिमिलर प्रोसेसेस अर्थ के अलावा कहीं और भी एग्जिस्ट हो सकते हैं. तो अभी ठीक है, उन्होंने बता दिया, एविडेंसेस दे दिया, तो इस एविडेंसेस के बेसिस पे उन्होंने कंक्लूजन क्या निकाला, तो उन्होंने कंक्लूजन ये निकाला कि जो फर्स्ट नॉन सेलुलर फॉर्म है वो कुछ 3 बिलियन ईयर्स एगो फॉर्म हुआ होगा. उन्होंने ये बोला कि वो नॉन सेलुलर बायोमोलिक्यूल कैन बी डीएनए, आरएनए, पॉलीसेकेराइड्स एंड प्रोटीन हो सकते हैं. अब ठीक है, बता तो दिया कि पहले नॉन सेलुलर फॉर्म ऑफ लाइफ इतने साल पहले बना होगा. अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि दैट फॉर्मेशन ऑफ फर्स्ट सेल, ठीक है, तो ये बताने के लिए कि फर्स्ट सेल कैसे फॉर्म हुआ होगा उसके पीछे भी थ्योरी है. सो उस थ्योरी को हम लोगों ने बोला थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस. सो अंडर दिस थ्योरी, जैसे कि बताया कि इट इज फॉर्म 3 बिलियन ईयर बैक. So
दे वुड बी, जैसे उन्होंने बता दिया कि वो आरएनए, प्रोटीन और पॉलीसेकेराइड्स हो सकते हैं, एंड दे हैव द कैपेबिलिटी ऑफ सेल्फ रेप्लिकेटिंग। ठीक है, तो उन्होंने ये भी बताया कि इन कैप्सूल्स को उन्होंने क्या बोला, कोएजरवेटिव से पूछा जाता है, व्हाट आर कोएजरवेटिव्स। ओके, नाउ जैसे इन्होंने बोला कि 3 बिलियन ईयर एगो पहले फर्स्ट नॉन सेलुलर फॉर्म ऑफ लाइफ ओरिजिनेट हुआ था। नाउ क्वेश्चन अराइजेस दैट जो फर्स्ट, दिस इज नॉन सेलुलर, दिस द फर्स्ट सेलुलर फॉर्म ऑफ लाइफ कब अराइज हुआ होगा, तो उन्होंने बोला कि इट डिड नॉट पॉसिबली ओरिजिनेट 2000 मिलियन ईयर तक, तो ये अराइज नहीं होगा। किसकी बात कर रहे हैं, फर्स्ट सेलुलर फॉर्म। फर्स्ट सेलुलर फॉर्म का मतलब होता है फर्स्ट सेल, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म। सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म को हम यूनिसेलुलर भी बोल सकते हैं, राइट। देन और वो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म हम सबको पता है, इट इज नॉट अदर देन बैक्टीरिया। सो उन्होंने ये भी बोला कि लाइफ फॉर्म जो है दैट इज वाटर एनवायरनमेंट ओनली। जो लाइफ फॉर्म फर्स्ट एग्जिस्ट हुए थे दैट इज इन वाटर एनवायरनमेंट ओनली। सो क्या हुआ कि ये जो थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस था उससे जो पॉइंट्स निकल रहे थे, तो जो ये यूरेज ने प्रेजेंट किया था, यूरे मिलर ने, उन्होंने जो बताया था नॉन सेलुलर फॉर्म ऑफ लाइफ, तो उसके एग्जिस्टेंस में उन्होंने क्या बोला कि कुछ जो साइंटिस्ट थे, कुछ जो भी साइंटिस्ट के सामने उन्होंने प्रेजेंट किया, द मोस्ट ऑफ द साइंटिस्ट वर एग्रीड विद द एविडेंसेस एंड द कंक्लूजन पुट बाय द यूरेज एंड मिलर। सो उसके बाद उन्होंने क्या किया कि ये जो थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस थी दैट इज नथिंग बट द फॉर्मेशन ऑफ फर्स्ट सेल वाज एक्सेप्टेड बाय मोस्ट ऑफ द मेजॉरिटी। नाउ आपको ये मिलर वाला एक्सपेरिमेंट का डायग्राम एक्सप्लेन। ओके, जो उन्होंने जब एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था, तो ये वो इंस्ट्रूमेंट है जिसके अंदर उन्होंने ये ऑब्जर्व किया। तो उन्होंने क्या किया था, देखो, यस, ये एक फ्लास्क है जिसमें ये कुछ सूटेबल कंडीशंस प्रोवाइड करके उन लोगों ने इलेक्ट्रोड से स्पार्क करवाया था, और स्पार्क से जब ये हाइड्रोजन, जब ये वाटर जो स्प्लिट हुआ हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन में, फिर ये ऑक्सीजन जो है कंबाइन हुआ इन गैसेस के साथ। ये जो गैसेस है, फिर क्या किया है, जब इन्होंने ये एक्सपेरिमेंट 1 वीक के लिए परफॉर्म किया, तो इन्होंने ऑब्जर्व किया कि ये गैसेस एक दूसरे के साथ कंबाइन करके अमीनो एसिड्स फॉर्म कर रही हैं। दिस इज व्हाट ओनली देखा। और ये तो आप लोगों ने केमिस्ट्री लैब में देखा ही होगा कि कंडेंसर क्या होता है, एक कंडेंसर में वाटर आउट होता है और एक में वाटर इन होता है, ये कंडेंसर है। दिस इज बॉइलर वाटर, एक सूटेबल टेम्परेचर प्रोवाइड करके ये वाटर को बॉईल किया जाता है सो दैट कि वाटर वेपोरेट हो। वेपोरेट होने के बाद जब वो ठंडा हो जाए तो वो वाटर के फॉर्म में फिर से कंडेंस होके फिर से नीचे आ जाए, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ रेन। एंड फिर क्या हुआ, रेन आने के कारण जो भी अर्थ पे डिप्रेशन थे वो फिल हुए होंगे और उनको फिर ओशंस, रिवर ऐसे नाम दिए गए। ओके, नाउ एवोल्यूशन ऑफ लाइफ फॉर्म्स, हमें पता चल गया यूनिवर्स का फॉर्मेशन कैसा हो गया, हमें पता चल गया अर्थ का फॉर्मेशन कैसा हुआ। नाउ विल गो विद द लाइफ का फॉर्मेशन कैसे हुआ। बहुत सारी थ्योरीज आई, बट देयर इज वन थ्योरी कॉल्ड स्पेशल थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन, जिसने बोला कि all the lives in living organism that we see today are created as such। उन्होंने ये बोला कि अर्थ हमारा 4000 ईयर्स ओल्ड है,
क्या बोला? अर्थ इज 4000 ईयर ओल्ड, थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन के अकॉर्डेंस में। सी इसमें ना आपको ज्यादा पॉइंट समझने वाले हैं, रटना कुछ भी ज्यादा नहीं है ये सर, ये जस्ट इंट्रोडक्शन है। आप लोगों को डिफरेंट जो थ्योरीज है उनके एजम्पशंस पता होने चाहिए, एविडेंसेस पता होने चाहिए कि इस साइंटिस्ट ने ये थ्योरी दी है तो उनका मानना क्या था, बस ये चीजें आपको याद रखनी है। समटाइम दे आस्क अबाउट द डायग्राम, अदरवाइज अगर उन्होंने 5 मार्क्स के लिए दे दिया स्टिलर मिलर मिलर यूरेस और मिलर एक्सपेरिमेंट, तो उस समय फिर आपको बनाना पड़ेगा ये डायग्राम, अदरवाइज बनाने की जरूरत नहीं है। ऑलराइट, so these are the challenges for the special creation theory. What were the challenges? हाँ, there is one वो जो वॉयज चलाते हैं सेलर, एक सेल शिप है, मतलब एक शिप है जिसका नाम है HMS बेगल, और वो शिप जो है वो पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड घूमी, ठीक है, बोट पे घूमी, और जो आइलैंड्स जो एग्जिस्ट भी नहीं करते ना, देर आर, आज भी देखा जाए ना जो आइलैंड्स हम लोगों को पता है उनसे भी बहुत सारे ऐसे आइलैंड्स है जो हमें नहीं पता है। तो ये जो डिफरेंट साइंटिस्ट थे ना, वॉयज लेके जाते थे, वॉयजर जिनको बोलते हैं, वो लोग ना डिफरेंट बोट्स के मदद से उन आइलैंड्स को खोज के उन आइलैंड्स में जाते हैं, वहाँ के लाइफ फॉर्म्स को ऑब्जर्व करते, स्टडी करते हैं, एंड देन ऑन द बेसिस ऑफ दैट वो अपना प्रेडिक्शन देते हैं। तो यहाँ पे एक डार्विन, अपने चार्ल्स डार्विन नाम के एक साइंटिस्ट थे, वो एक शिप पे उन्होंने ऑल ओवर द वर्ल्ड सेल किया था, तो उस शिप का नाम था HMS बेगल। तो उन्होंने क्या बोला था कि जो एग्जिस्टिंग लाइफ फॉर्म्स है उनमें सिमिलैरिटीज है ऑफ वेराइंग डिग्री। उन्होंने ये बोला था कि आज भी अगर इसके कोई भी धर्म का हो, कोई भी जाति का हो, या कहीं का भी इंसान हो, कहीं ना, या इंडिया का हो या ऑस्ट्रेलिया का हो, कहीं का भी इंसान हो, ह्यूमन जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो बहुत सारी सिमिलैरिटीज शेयर करते हैं। देयर आर वेरी लेस differences that difference a person from person, राइट? तो उन्होंने बोला कि कहीं ना कहीं जो एग्जिस्टिंग लाइफ फॉर्म्स है टुडे वो बहुत सारी सिमिलैरिटी शो एक्सप्रेस कर पा रही है टू देयर लास्ट जो मे फर्स्ट ओरिजिन ऑफ लाइफ जब हुआ था उनसे। बिकॉज जैसे जैसे समय बदला है तो उस हिसाब से क्या हुआ कि वेरिएशंस आए, और वो वेरिएशंस जनरेशन, एक जनरेशन, 2 जनरेशन, 3 जनरेशन, जब एवरी ईयर जनरेशन, एवरी ईयर जो एवरी जनरेशन जब वेरिएशंस आएंगे तो क्या होगा कि उन वेरिएशंस का मॉडिफिकेशन होगा, वो वैसी वेरिएशंस है। वेरिएशन का मतलब ये होता है ना कि दैट इज डिफरेंट फ्रॉम द प्रीवियस वन, राइट? जस्ट ए सेकंड। सो और ये उन्होंने किस बेसिस पे बोला, वो बहुत सारे आइलैंड्स पे गए थे। इवन कि वो जो फिंचेस है ना, आगे आप पढ़ोगे जो डार्विन फिंचेस जो बोलते हैं बर्ड्स की बिक के बारे में, वो भी बहुत सारी जगह पे गए, आइलैंड्स पे गए, और वहां पे उन्होंने रह के ना बहुत स्टडी की है, डिफरेंट बीक्स के बारे में पढ़ाई की है, उन बहुत सारी पढ़ाई, बहुत सारे रिसर्च के बाद उन्होंने वो कंक्लूजन पे आए हैं, और उनका ये कंक्लूजन बहुत बड़ा है। ये चीज जो है ना, दिस इसका मीनिंग बहुत बड़ा है अगर आप जानने जाए तो, कि फर्स्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म जब इस अर्थ पे आया था उसकी क्वालिटीज, उसकी कैरेक्टर, और जो आज ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट कर रहा है लिविंग ऑर्गेनिज्म, अगर दोनों में सिमिलैरिटीज देखने जाएंगे तो देर आर सो मेनी ऑफ सिमिलैरिटीज। बिकॉज हाँ, देर आर वेरिएशन, सो मेनी वेरिएशन हो सकते हैं, बिकॉज एवरी जनरेशन वेरिएशंस
there is existence of variations, and variations जनरेशन में जनरेशन सब किस कैरेक्टर में इतनी वेरिएशंस आ सकती है कि उसको डिस्टिंग्विश करना बहुत डिफिकल्ट हो जाए, बट यस सिमिलैरिटीज स्टिल देयर एग्जिस्ट, ऐसा उनका मानना था। बहुत सारी रिसर्च के बाद ही केम अप विद दिस conclusion, and it is very important. So yeah, उन्होंने एक और चीज बोली थी, उन्होंने ये भी बोला था कि ये कि जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स किसी एक को बेटरली अलाउ करे नेचुरल कंडीशंस में सरवाइव करने के लिए, वही आउटब्रेड कर सकता है। एंड और उन्होंने एक और चीज बोली थी, दैट इज सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट का मतलब होता है कि अगर देखो अभी फॉर एग्जांपल हम लेते हैं कोरोना का, ठीक है, कोरोना भी एक तरफ से वेरिएशन है, पता है आपको। जैसे अभी मुझे एक बात बताना, कोरोना जब हुआ था तो जो लोग फिट थे, जो लोग जिनमें कुछ क्वालिटीज थी, कुछ ये डिजीज रेजिस्टेंस जो क्वालिटीज थी, उनके कारण दे आर सर्वाइविंग। अच्छा आप लोग ना मुझे बताना कि अभी कितने लोग मरे हैं। तो वो लोग जो मरे हैं वो इसलिए मरे बिकॉज जब वो ये कोरोना वायरस के कारण जो ये वायरस उनके बॉडी में गया था, तो उनके बॉडी में इतना पोटेंशियल नहीं था कि वो उस वायरस से फाइट कर सके। इफ दे वुड हैव दैट मच ऑफ कैपेबिलिटी तो आज वो जिंदा होते। इसीलिए बहुत सारे लाइक लैक्स एंड मिलियंस में लोग इस कोरोना वायरस के कारण गए हैं, राइट। तो ये भी कहीं ना कहीं ये बोलता है सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट, मतलब जो फिट है वही सर्वाइव करेगा, जो फिट नहीं है वो सर्वाइव नहीं करेगा। ये डार्विन ने भी बोला था। उन्होंने बोला था कि जो भी इंसान, चाहे वो क्लाइमेट हो, फूड हो, फिजिकल फैक्टर्स हो, ये जो फैक्टर्स हैं, किसी भी इंसान को अगर एक पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में रहने को अलाउ कर रहे हैं, दे अलाउ देम टू लिव, so that is their quality, that is their special character, that is special thing that allow them to live, that allow them to exist on the earth। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। Okay, then फिर एक और आए जिनका नाम था अल्फ्रेड वैलिस। अल्फ्रेड वैलिस जो थे वो एक आइलैंड पे गए थे, मैलिया आर्चिपेलागो नाम का आइलैंड है। वहां पे भी उन्होंने एक्सपेरिमेंट जो परफॉर्म किया था, तो उनके कंक्लूजन्स भी सिमिलर थे किसके सिमिलर में, डार्विन के सिमिलर में। तो देखो अभी ये जो साइंटिस्ट गए थे ना, तो इन्होंने एविडेंसेस दिए। तो एविडेंसेस आर सो मेनी एविडेंसेस, तो पर्टिकुलर एक एक एविडेंस को लेके चलेंगे। इससे पहले मैंने अभी तक जो पढ़ाया है वो समझ में आया क्या? यस, ये क्वेश्चन है, ठीक है। अच्छा रुको, बाकी वैसे आज तो बड़े लोग आए हैं, क्या बात है, इतने दिनों से क्लास नहीं हुई थी इसीलिए आए हो। आप लोगों को बोर तो नहीं लग रहा है ना? यस, सब म्यूट हो जाते हैं क्वेश्चन। आप लोगों को बोर तो नहीं लग रहा है ना? मेरा क्वेश्चन ही है, जवाब मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ आप लोगों से। यस, थोड़ा बहुत बोरिंग है ये चीज, ऐसा नहीं है, because for me during my time also this is the one of the chapter which I don't like, because इसमें क्या था, आपको memorizing points आता है and ऐसे है कि it's a theory only। अच्छा मुझे एक बात बताओ,
अभी तक आपने जो चैप्टर्स पढ़े हैं उनमें से सबसे इजीएस्ट चैप्टर आपको कौन सा लगा? लेट मी आस्क पर्टिकुलरली, अदरवाइज आप लोग जवाब ही नहीं दोगे। यस नेहा, कौन सा चैप्टर इजी था? नेहा, कौन सा चैप्टर इजी था? गायत्री, गायत्री, मैम फर्स्ट चैप्टर। ओह ग्रेट। फर्स्ट तो इजी है ना, फर्स्ट को छोड़ के कौन सा इजी था? सेकंड, थर्ड, मैम सेकंड एंड फिफ्थ वन। फिफ्थ वन, प्रिंसिपल बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। यस, यस मैम। ग्रेट, गुड गुड। अच्छा मुझे एक बात बताओ, आपकी तो इतने बार टेस्ट हुई है, तो अभी तक हमने जो चैप्टर पढ़े हैं वो बहुत अच्छे से हुए होंगे, राइट? राइट, यस मैम। क्योंकि बहुत बार आपके सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव टेस्ट हुए हैं, तो बहुत अच्छे से हुए होंगे, तो ठीक है। तो ठीक है, अभी जो चैप्टर्स होंगे ना वो भी अच्छे से करना है, ताकि आपका 12th तो क्लियर हो जाए। तो जो नीट देना चाहते हैं वो लोगों को जस्ट फॉर 11th फोकस करना होगा, बिकॉज 12th का बेस क्लियर होगा आपको। ये 12 तारीख को है ना नीट का एग्जाम? या इस मंथ के 12 तारीख को नीट का एग्जाम है? ओके, कौन कौन वैसे देने वाला है? आई नो कौन कौन देने वाला है, स्टिल मैं पूछ रही हूँ। अरे आप लोग तो सब म्यूट हो जाते हैं। अच्छा अथर, आर यू देयर? यस मैम। आपका तो एनडीए होने वाला है ना, आपने एनडीए दिया था क्या लास्ट? नो मैम, एग्जाम के दिन कुछ काम आ गया था इसलिए नहीं जा पाया। तो अभी देने वाले हो? अच्छा इसमें यहाँ पे यस जो मैम। ओके ओके, ऑल राइट ऑल राइट ऑल राइट। यहाँ पे जो गर्ल्स है ना, उनमें से इज देयर एनी गर्ल हु इज इंटरेस्टेड एंड विलिंग टू गिव दिस एनडीए एग्जाम, since it would be eligible for you guys as well? Is there any girl? No one? कोई नहीं देना चाहता? No one wanted to join armed forces? Yes Neha? नो मैम। All right all right all right. No, it's मैम, no, it's yes. मैम आपका भी एसएसबी हुआ था ना, कैसा गया? I was conference out. Who told you? मैम नरेंद्र सर। Yeah, I was conference out. It was I went for AFSB Gandhinagar and I was conference out. It was second conference out. So that is वो तो आगे वाली चीजें, like you guys are now giving NDA का exam, so just focus on your written, because ऐसा होता है ना कि आपको अपनी जो भी like OLQs होती है, एक ऑफिसर लाइक क्वालिटीज, वो आपको डेवलप करनी होती है। और ऐसा नहीं होता है कि यार आप एसएसबी के लिए जा रहे हो तो वो दिखाना होता है, नहीं, आप अपनी लाइफ में उसको लेकर आ जाओ, फिर वहाँ पे आपको शो ऑफ नहीं करना पड़ता। एंड यस, ये जो फेलियर्स होते हैं ना लाइफ में, नॉट ओनली फॉर लाइक एसएसबीज एंड ऑल, जो जितने भी लाइफ में फेलियर्स होते हैं, दे आर नथिंग, नॉट अ फेलियर बट अ पार्ट ऑफ योर जर्नी और पार्ट ऑफ अ सक्सेस। बिकॉज वही आपको बताते हैं कि इन फ्यूचर अगर बून्स आते हैं, कोई भी स्ट्रगल्स ऑब्स्टेकल्स आते हैं, तो यू दैट प्रिपेयर यू टू फेस दैट स्ट्रगल गाइस। ऑल राइट। और किसी का भी और, अच्छा कोई और एफएमसी के लिए ट्राई करना चाहता है क्या, ये जो अभी 2022 में आने वाला है नीट?
Yes, any one of you? Girls में, because बॉयज में तो वो तो एनडीए के लिए करेगा, बाकी गर्ल्स कोई भी नहीं ट्राई करना चाहता? यस, व्हाट अबाउट गायत्री, मेघा, नेहा, प्रीति, सोनाली? कोई भी नहीं ट्राई करना चाहता, चलो कोई बात नहीं। बट नीट तो दोगे ना? नीट कितने देने वाले हैं 2022 का? या फिर यस, कौन है ये? I can't see. अच्छा, गायत्री देने वाली है नीट, और कौन देने वाला है? और कोई भी नहीं? अच्छा, मेघा भी देने वाली है, और सोनाली भी देने वाली है। ओके ओके ओके, मतलब 3 लड़कियां देने वाली हैं अभी तक तो। व्हाट अबाउट मेघा, नेहा, प्रीति, सोनाली? सोनाली, देयर इज वन। ऑलराइट, ठीक है। तो यही है कि यार कोई भी एग्जाम आप दोगे, बिकॉज आफ्टर 12 तो आप लोगों को आगे पढ़ना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। बट इट इज लाइक इफ यू आर गिविंग एनी ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जाम लाइक नीट, लाइक जेई, लाइक एनडीएज एंड ऑल अदर एग्जाम्स, जो भी आप दे रहे हो अच्छे से देना, बिकॉज ऐसा होता है ना कि इफ, और ना इसमें ये जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं ना, इनमें आपको यू, जैसे आपको 12th तक क्या होता है कि सिलेबस में यू हैव टू डू द थिंग्स and then you have to give the exam. But in competitive exam now you need not to do the entire thing, all the chapters, all the things. No, whenever you are preparing for any of the competitive exam, the first thing that you have to do is that first you have to focus on previous year question papers, because previous year question paper से you get an idea कि किस फैशन में क्वेश्चंस आते हैं और कौन से पोर्शन पे वो फोकस करते हैं, बिकॉज वो क्या होता है, they keep on repeating those questions, or what they do, either they change the fashion of that question. So आप लोगों को प्रीवियस, बिकॉज होता क्या होता है कि हम लोगों के पास तो क्वेश्चन पेपर होता नहीं है, सो हमारे पास ना वो जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर इज द ओनली की टू क्रैक दैट एग्जाम। बट मोस्ट ऑफ अस क्या होता है, हम लोग सोचते हैं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है तो वो तो क्वेश्चन आएगा नहीं, सो उसको करने से क्या फायदा है। बट वो एक आपको क्लू दे देता है कि यार इस टॉपिक में से इस तरह क्वेश्चन बन सकता है, तो इसको आपको इस तरह पढ़ना है, ठीक है। तो जब भी जो भी आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने जा रहे हो, तो उससे पहले क्या करना है आप लोगों को, बस वो क्वेश्चन पेपर्स को पहले देख लेना है। सिलेबस आपने देख लिया, दैट इज ओके, बट क्वेश्चन पेपर देखना इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टास्क दैट वन शुड डू, जो मोस्ट ऑफ बच्चे नहीं करते हैं। और बाकी तो अभी बहुत से डिफरेंट बहुत सारी वीडियोस आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगी, यहाँ बहुत चीजें मिल जाती है। बट यहाँ पे आपका जो इम्पोर्टेंट चीज होता है दैट इज सिलेक्शन। आपको कौन सा सिलेक्ट करना है, दैट इज इम्पोर्टेंट। एंड आई थिंक यही क्वालिटी होती है जो कहीं ना कहीं एक कॉम्पिटिटर को, मतलब दो में से किसी एक को जिताती है। तो अब अगर आपको जीतने वाला बनना है तो आपको वो स्पेशल क्वालिटीज अपने अंदर डेवलप करनी होगी, ठीक है। तो जो वो कॉम्पिटिटर विन करता है, उस वो कौन सा काम करता है, वो स्मार्ट वर्क करता है। जो भी एग्जाम के लिए अपियर हो रहे होते हैं, ऑब्वियसली यार जो अपियर हो रहे हैं वो लोग क्या करते हैं, हार्ड वर्क करते हैं, ऐसा कोई बात, जो भी एग्जाम दे रहे हैं वो हार्ड वर्क करेगा, वो उसको भी क्रैक करना है। बट आज के ज़माने में कंपटीशन में बहुत ज़्यादा हो गया, सो लाइक लैक्स ऑफ स्टूडेंट्स देते हैं। एक एनडीए देख लो, पहले कुछ लाइक 1 लाख देते थे, अब 1 से 2 लाख 3 लाख ऐसे पर ईयर ऐसे इंक्रीज हो रहे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है। सो जैसे नीट में आपके 8 लाख तक स्टूडेंट्स नीट के एग्जाम देते हैं और वो ईयर बाय ईयर इंक्रीज होता जा रहा है। तो क्या हो रहा है, कंपटीशन बढ़ रहा है। तो यहाँ पे ना जो हार्ड वर्क कर रहे होते हैं,
दो तरह के लोग होते हैं, ठीक है। सपोज देयर आर टू टाइप्स ऑफ पीपल, अल्फा एंड ब्रावो। ये दो टाइप के एक के बंदे का एक है अल्फा, एक है ब्रावो। दोनों ही कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए अपेयर हो रहे हैं। जस्ट एक एग्जाम्पल है। तो वो लोग क्या है, दोनों ही बहुत हार्ड वर्क करते हैं। तो होता क्या है, अल्फा जो होता है ना, वो हार्ड वर्क के साथ ना अपना स्मार्ट वर्क करता है, और ब्रेवो जस्ट हार्ड वर्क करता है। तो ये क्या है, ये अल्फा जो है 6 आवर्स पढ़ता है, ब्रेवो जो है 12 आवर्स पढ़ता है। बट ये जो अल्फा है ना, वो डबल पोर्शन कंप्लीट करता है एज कम्पेयर टू ब्रेवो। तो वो कैसे करता है कि हाँ 12 घंटे में, या मैं ऐसे कह सकते कि दोनों ही सेम सिलेबस या सेम पोर्शन कंप्लीट करते हैं इन अ डे। बट यहाँ पे अल्फा जो है वो भी हार्ड वर्क कर रहा है, बट हाउ इट इज डूइंग, ही इज डूइंग विद स्मार्टनेस। तो आपको किसी भी फील्ड में कोई भी एग्जाम देने जा रहे हो, अगर बी ए 12th का एग्जाम, तो आपको किसी भी चीज के लिए एक्टिवली पार्टिसिपेट करना है और एक्टिवली और स्मार्टली वर्क करना है। इफ यू डू स्मार्टली, सो दिस स्मार्टली से आपका क्या सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। और कंपटीशन में यही तो टेस्ट करते हैं वो लोग, उनको बस एक ऐसा चाहिए होता है, बिकॉज ये यहाँ से जो सिलेक्शन होता है ना, तो वो आपकी उस क्वालिटीज पे के बेसिस पे सिलेक्शन होता है, जो आपको आगे काम आएगी, आगे जो डिसीजंस होंगे वो लेने में आपको मदद करती है। तो इसीलिए आपको क्वालिटीज अच्छी डेवलप करनी है और स्मार्टनेस लाना है अपनी किसी भी एक्टिविटीज। एंड दिस इज ऑल अबाउट टुडे का मंत्रा फॉर यू गाइस। तो ठीक है, इतना तो हम लोगों ने, ठीक है, थोड़ा ब्रेक चाहिए था, वो हो गया। अब हम बैक टू आवर टॉपिक आते हैं। अच्छा, बस समझ में आया ना मैं क्या थीम आपको क्या समझाने की कोशिश कर रही थी इस छोटे से मंत्रा से। यार अनम्यूट करके एक जन तो मुझे बता दे, सो अकॉर्डिंगली मैं मूव कर सकती हूँ आगे हमारा टॉपिक जो है। क्विकली क्विकली क्विकली। यस मैम। अंडरस्टूड। चलो, ऑल राइट। चलो, सो बैक टू आवर टॉपिक। सो ये जो टॉपिक है दैट इज एविडेंसेस फॉर एवोल्यूशन। सो पहला एविडेंस जो है दैट इज पैलेंटोलॉजिकल एविडेंस। सो पैलेंटोलॉजिकल एविडेंस, हम फॉसिल्स पैलेंटोलॉजिकल में हम पहला वर्ड पढ़ते हैं फॉसिल्स, ठीक है। अगर आपको फॉसिल समझ में आ गया तो आपको पैलेंटोलॉजिकल एविडेंसेस भी समझ में आ जाएंगे। फॉसिल्स का मतलब होता है हजारों साल पहले कुछ इम्प्रेशंस होते हैं पास्ट ऑर्गेनिज्म के। तो वो जो भी सेडिमेंट्री, इट कैन बी आइदर ऑफ एनीथिंग, आइदर ऑफ सेडिमेंट्री रॉक्स और मीडिया, किसी भी मीडिया पे ये जो ओल्ड पास्ट ऑर्गेनिज्म के इम्प्रेशंस होते हैं, तो उन इम्प्रेशंस को हम लोग फॉसिल्स बोलते हैं, ठीक है। तो इन फॉसिल्स की स्टडी को हम बोलते हैं पैलेंटोलॉजी। सो इन, और जो ये एविडेंसेस इनके बेसिस पे हमें मिल रहे हैं उनको बोलेंगे पैलेंटोलॉजिकल एविडेंसेस, राइट। सो डिफरेंट, मेनली इग्निशियस और मेटा, ये सेडिमेंट्री रॉक्स है जिन पे हमें ये इम्प्रिंट्स मिलते हैं, ठीक है। एंड इन्हीं इम्प्रिंट्स को हम लोग फॉसिल्स बोलते हैं। तो और अभी अगर मैं फॉसिल्स की मदद से, अगर इफ यू वांटेड टू नो द एज और ईयर्स ऑफ द that organism, so there are so many techniques due to which we can find out the age of them. So one of them is carbon dating, other is isotope, radio isotopes। ये सब जो चीजें है ना, you further study और थोड़ा बहुत आपको आपने पहले भी पढ़ा हुआ है। अच्छा, मुझे बताओ कार्बन डेटिंग पता है क्या होती है? यस, एनीवन, किसी को पता है कार्बन डेटिंग क्या होती है? मैंने तो बता भी नहीं है। किसी भी ऑर्गेनिज्म या किसी भी वो जो फॉसिल होता है, उस फॉसिल का एज जानने के लिए हम लोग कार्बन डेटिंग करते हैं। उन कार्बन डेटिंग से हमें पता चल जाता है उस फॉसिल का एज क्या है, कितने साल पहले ये ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट करता होगा इस अर्थ पे, ठीक है। और क्या इसमें, हाँ, तो इन्होंने डायनासोर्स के डायग्राम
put that diagram. So डायनासोर्स जो है ना वो बहुत पुराने, तो सबसे पहले जो डायनासोर आया था उसका ट्रिसैराटॉप्स नाम का डायनासोर आया, फिर ट्राइनासोर्स आए, फिर ट्रैंड्रोन्स आए, देन क्रोकोडाइल्स आई, आर्चिपेट्रिक्स आए, फिर स्टियोसोरस आए, देन ब्रेंसियोसोरस आए। तो ये कुछ डायनासोर्स के नाम हैं जो अर्थ पे एग्जिस्ट करते थे किसी समय। आज तो उनके हमें सिर्फ फॉसिल्स मिलते हैं। आपको पता है पहले डायनासोर्स चलते भी थे, कुछ डायनासोर्स दौड़ते भी थे, कुछ डायनासोर्स फ्लाई भी करते थे, डायनासोर्स के विंग्स भी थे। तो ये कुछ फॉसिल्स मिले जिनके बेसिस पे हम लोगों ने ये पता किया कि डायनासोर्स भी एग्जिस्ट करते थे। और ये जो है ना, ये डायनासोर्स, ब्रेंसियोसोर्स, स्टेगोसोर्स, ये जो डायनासोर्स है इनके हमें फॉसिल्स मिले, और फिर हम लोगों ने इन फॉसिल्स के को जान के हम लोगों ने इनके नाम रखे। ये आप देखते हो पैलेंटोलॉजिकल एविडेंसेस में। अब देखते हैं कंपैरेटिव एनाटॉमी एंड मॉर्फोलॉजिकल एविडेंस। पैलेंटोलॉजिकल एविडेंसेस हम लोगों ने पढ़ लिए, अब कंपैरेटिव एनाटॉमी एंड मॉर्फोलॉजिकल एविडेंसेस। तो इसमें क्या हुआ कि उन लोगों ने क्या किया कि मॉर्फोलॉजिकल एविडेंसेस लाइक मॉर्फोलॉजी कैसी है, उनकी एक्सटर्नल अपीयरेंसेस कैसे है, उसके बेसिस पे उन लोगों ने, या एनाटॉमी उनके इंटरनल अपीयरेंसेस कैसे, इंटरनल स्ट्रक्चर कैसा है, उसके बेसिस पे उन लोगों ने सिमिलैरिटीज दिखाई, सिमिलैरिटीज और डिफरेंस के बेसिस पे भी उन्होंने कंपेयर किया एंड दे कम अप विद द एविडेंसेस। नाउ नेक्स्ट इज डाइवर्जेंट एवोल्यूशन, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सो लेट्स सी। Example is also very important. ओके, तो यहाँ पे व्हेल, बैट, चीता एंड ह्यूमन, इनका जो 4 लिम्स है उनके पैटर्न जो है, जो 4 लिम्स का बोन है उनका पैटर्न जो है वो बहुत सिमिलर है इन व्हेल, बैट, चीता और ह्यूमन। अगर ये देखा जाए तो ये क्या है, होमो सेपियंस है, ठीक है। तो ये अगर हम लोग ये देखा ह्यूमंस और होमो सेपियंस, व्हेल, बैट, चीता, ये जो है ये कौन से फाइलम से बिलोंग करते हैं? ये चलो ये मुझे बताओ कौन से फाइलम से बिलोंग करते हैं? यस, प्रीति कौन से फाइलम से बिलोंग करते हैं? Guys, we human belong to which phylum? Mammalian. Right. व्हेल भी है, बैट भी है, चीता भी है उसमें, तो इन सब में सिमिलैरिटीज है। अभी ये सोचने की बात है, आगे जो ये फाइलम वगैरह आया है उनको हम लोगों ने देखो व्हेल, चीता, बैट्स और ह्यूमन को हमने एक फाइलम में क्यों डाला? बिकॉज दे शेयर similar characteristics, they share some of the similarities in between them. One of them is the pattern of bones of their 4 limbs. तो इसीलिए उन्होंने एक पैटर्न, एक कुछ तो सिमिलरिटी शेयर कर रहे हैं, ठीक है। द नेक्स्ट इज दैट इज या बट उनका जो फंक्शन है, अब मुझे बताओ ह्यूमंस का जो 4 लिम्स है उनका फंक्शन क्या होता है, व्हेल और चीता। अब देखो व्हेल लिव्स इन वाटर, सो उनका क्या काम होगा, उनका काम क्या होगा, स्विमिंग, राइट। बैट का क्या होगा, बैट फ्लाई करता है। देन चीता में क्या होगा, रनिंग में। ह्यूमन के 4 लिम्स से उनका काम अलग रहता है, एक्टिविटीज डिफरेंट करने के लिए काम में आते हैं। तो देखा जाए तो दे परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस, राइट, बट दे हैव सिमिलर एनाटॉमी
structure. ठीक है, all of them have what? All of them have humerus, ulna, radius, carpal, metacarpal, phalanges in their forelimbs. हम लोगों ने पढ़ा 11th में बोन वाला चैप्टर. ठीक है, बोन वाले चैप्टर में हम लोगों ने पढ़े फोरलिम्स के ह्यूमरस, अल्ना, रेडियस, कार्पल्स, मेटाकार्पल, phalanges. ठीक है, सो यही है कि इनकी सिमिलरिटीज, दे शेयर पैटर्न ऑफ बोन ऑफ फोरलिम्स, दे शेयर द सिमिलर डिफरेंसेस. उनका डिफरेंस ये है कि फंक्शन डिफरेंट है, स्ट्रक्चर इज सेम बट फंक्शन इज डिफरेंट. ओके, सो देन एंड हाउ दिस स्ट्रक्चर. अब ठीक है, इनका स्ट्रक्चर सेम है बट फंक्शन डिफरेंट है, तो फिर क्या क्या इन्होंने अपना जो स्ट्रक्चर है उस स्ट्रक्चर को मॉडिफाई किया. मॉडिफाई, हाउ दे मॉडिफाई अकॉर्डिंग टू देयर नीड. अब जैसे जैसे उनको नीड, अब देखो व्हेल तो स्विम करता है, वो तो दौड़ता नहीं है ना. सो उन्होंने अपने फोरलिम्स को मॉडिफाई किया और वो स्विमिंग के काम में उनको लेने गए. तो देखो यहाँ पे ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है. ऐसे मतलब जिनका स्ट्रक्चर इज सेम एंड फंक्शन इज डिफरेंट, ऐसे स्ट्रक्चर्स को हम क्या बोलते हैं? वी कॉल देम एज अ होमोलॉगस. याद रहेगा, जिसका स्ट्रक्चर सेम है और डिफरेंट फंक्शंस है उनको होमोलॉगस ऑर्गन्स बोलते हैं. एंड होमोलॉगस ऑर्गन इंडिकेट द कॉमन ancestry. We called it as a divergent evolution to it as well. Homologous organ के other examples are ये examples याद रखने, ठीक है. ये होगा डाइवर्जेंट एवोल्यूशन. अब बताए कन्वर्जेंट एवोल्यूशन. देखो आप लोगों ने पढ़ा होमोलॉगस ऑर्गन मतलब स्ट्रक्चर सेम है, डिफरेंट फंक्शन है. अब यहाँ पे देखो, wings of butterfly and wings of bird look alike, मतलब they look similar. See, anatomically if we see, they do not have similar structure though they perform the similar function. तो यहाँ पे क्या है कि structure is different but function is same. Anatomically they are not same, right? But their function is same. ठीक है, that is what they had given. These organs are anatomically different but functionally they are similar. All right, so we call them as analogous organ. And we call them as convergent evolution. What we call them as convergent evolution. So eyes of octopus, eyes of mammal, octopus की आंखें देखिए कितनी बड़ी बड़ी होती है. दो दे और ह्यूमन की आईज देख लो, दो उनका एनाटॉमी डिफरेंट है बट उनका काम तो एक है, दोनों ही यूज्ड फॉर साइट विजन, राइट? देन फ्लिपर्स ऑफ पेंगुइन्स एंड डॉल्फिन्स. डॉल्फिन्स और पेंगुइन्स के जो फ्लिपर्स होते हैं वो किस काम में आते हैं? तो जो इनका काम इनका स्ट्रक्चर भले ही डिफरेंट हो लेकिन इनका काम सेम होता है. Even if we see the example, if we see in case of vegetables, so vegetables में क्या है कि इनका structure is different. If we see sweet potato या potato, तो sweet potato is what? It is a root modification, जबकि potato is a stem modification. और इनका काम क्या है? इनका काम है as usual potato, दोनों ही एक तरह के potato है बट modification अलग है, internal, मतलब जिससे बने हैं they are different, right? So now ये हो गया. हम लोगों ने पहले क्या पढ़ा? पहले क्या पढ़ा? That is paleontological evidences. Then we studied about the anatomy and the morphological evidences. Then we studied about the divergent evolution.
फिर हम लोगों ने कन्वर्जेंट एवोल्यूशन पढ़ा. नाउ देयर इज वन थिंग दैट इज द बायोकेमिकल एविडेंसेस. And biochemical evidences में we definitely will talk about the biochemicals. So chemical में if you see the proteins and gene, they उनका काम क्या है? उनका काम तो यही है, they have to protein से amino acids बनेंगे, और कहीं ना कहीं जीन्स में भी जीन्स भी प्रोटीन से ही बने होते हैं. तो दे हैव अ कॉमन एंसेस्टर. अगर हम देखें ना, पूरे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है ना, उन सबका एक कॉमन एंसेस्टर है. ठीक है. तो फिर एक क्वेश्चन आता है ना कि फिर ये सब लोग डिफरेंट कैसे हो गए. If I'm talking about animals, if I'm talking about birds, if I'm talking about trees, इन सबका एक कॉमन एंसेस्टर है. तो वो कॉमन एंसेस्टर में जब मॉडिफिकेशंस आए होंगे, वेरिएशंस आए होंगे, तभी जाके वो डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स बने होंगे. सो वी कैन से दैट वी ऑल हैव अ कॉमन एंसेस्टर. ओके. ये embryological support for the evolution. तो ये जो एम्ब्रोलॉजिकल सपोर्ट है, आपको पता है, ये जो हम लोग ह्यूमन बीइंग्स, कोई भी छोटा सा इन्फेंट जो होता है वो बहुत ही अर्ली स्टेज पे देखा जाए तो सबका सिमिलर होता है. अगर आपको ना किसी फ्रॉग का हो गया, लाइक किसी लायन का हो गया, किसी ह्यूमन का हो गया, या किसी और भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का, अगर मैं आपको एम्ब्रियो स्टेज का फोटो दूं, तो it become very hard to depict, to distinguish between them, because most of them में it is similar. ठीक है, it is very much similar. तो आप ये बहुत सिमिलर होती है because they all are common ancestor, we all are having common ancestor. तो जो और बहुत बेसिक स्टेप होता है सब में सेम होता है. क्लियर है मेरा पॉइंट? समझ में आ रहा है आप सबको? Yes, ma'am. हाँ. तो फिर आपको अगर आप मेडिकल साइड में भी जाते हो या रिसर्च फील्ड में जाते हो ना, तो आप जब एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करोगे, दैट टाइम ऑल्सो आप ऑब्जर्व करोगे कि किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को एम्ब्रियो स्टेज पे डिस्टिंग्विश करना बिट ऑफ डिफिकल्ट हो जाता है, बिकॉज वो बहुत सारी सिमिलैरिटीज दिखती है. यही इसमें दिया हुआ है कि ऑलमोस्ट एम्ब्रियोनिक स्टेज में all seems the same or common in vertebrate, but it is absent in adult. But जैसे जैसे आगे divisions होते हैं, so divisions vary from organism to organism, और वो divisions जो होते हैं वो एक organism को human की बेबी, human का अगर वो embryo है तो human बनाएगा, birds का है तो bird बनाएगा, ऐसे होता है. तो it is only they have given like embryos of all vertebrates including human develop a row of vestigial gill slit just behind the head. देखो, अगर आप लोगों ने ये ऑब्जर्व किया होगा, अगर पहले की चीजें आपको याद हो ना, तो यू वुड बी इजीली एबल टू गो थ्रू दिस चैप्टर, बिकॉज इसमें बहुत से पॉइंट्स है जो आप लिंक कर सकते हो. अगर आप लोगों ने वो चैप्टर पढ़ा हुआ है, दैट इज प्लांट्स एनिमल्स के फाइलम्स का, तो उसमें आप लोगों ने देखा था नोटोकॉर्ड एग्जिस्टेंस है. नोटोकॉर्ड इज रिप्लेस्ड बाय वर्टिब्रल कॉलम. सो जब हम वर्टिब्रेटा कॉर्डेट्स की बात करते हैं, प्रोटोकॉर्डेटा, कॉर्डेटा, वर्टिब्रेटास की बात करते हैं, दैट नोटोकॉर्ड रिप्लेस्ड बाय वर्टिब्रल कॉलम, राइट? बट earlier there is a existence of notochord till what, till hemichordata तक existence है notochordata का. तो वो कहीं ना कहीं वो ये बताता है कि that is the functional. ठीक है, बट अगर यहाँ पे मैं देखो, ये फंक्शनल्स जो होते हैं टिल हेमिकॉर्डेटा, उसके बाद वो नोटोकॉर्ड जो होता है दैट इज रिप्लेस्ड बाय वर्टिब्रल कॉलम. फिर आगे भी होता है कि जो वो वर्टिब्रल कॉलम होता है ना, वो किसी में बर्थ में रहता है, एडल्ट में नहीं रहता, या चाइल्डहुड में रहता है, एडल्ट में नहीं रहता. इट वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन. देखो, इन्होंने यहाँ पे एक पॉइंट दिया हुआ है कि embryo of all vertebrates including human develop a row of vestigial gill slit just behind the head, but it is functional organ only in fishes.
and not found in any other adult vertebrate. तो जो वेस्टिजियल गिल स्लिट्स है जो हेड के पीछे होती है, तो ये एक फंक्शनल ऑर्गन है सिर्फ और सिर्फ फिशेस में, और बाकी जो भी वर्टिब्रेट्स है उनमें इट इज नॉट फंक्शनल, राइट. सो यही, बट ये जो थ्योरी दी थी ना एम्ब्रियोलॉजिकल सपोर्ट फॉर एवोल्यूशन, ये अर्नेस्ट हैकेल नाम के साइंटिस्ट ने दिया था, जिसने 3 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था, लाइक प्रोटोकॉर्डेटा, ये प्रोटिस्टा, मोनेरा एंड फंजाई, ये 3 क्लासिफिकेशन दिए थे उन्होंने, अर्नेस्ट हैकेल ने. तो उन्होंने एम्ब्रियोलॉजिकल सपोर्ट भी दिया, बताया था एवोल्यूशन के लिए, बट इट वाज नॉट जस्टिफाइड और नॉट एक्सेप्टेड बाय ऑल ऑफ द साइंटिस्ट, इसलिए उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट डिस्प्रूव कर दिया. ठीक है. देन फिर ऑब्वियसली यहाँ पे इन्होंने एक पॉइंट बोला है, एम्ब्रियो वर्टिब्रेट सीरीज exhibit many features that are not seen in adult. Obviously adult में एम्ब्रियो के फीचर्स सारे एडल्ट में दिखेंगे, तो सारे एडल्ट से ही दिखने चाहिए, इट इज नॉट हैपनिंग ना. So this point is valid. Then this is what it is given. Then, all right. Yes, organisms that share the common ancestor descent show the embryological pattern and on which they later build their adult pattern. This was first observed by von Baer. Name of the scientist. Right. So फिर अर्नेस्ट हैकेल ने बियर्स के लॉ पे काम किया एंड ही कॉल्ड इट एज अ बायोजेनिक लॉ, जो ये कहता है कि ऑन्टोजेनी रिकैप्सुलेट फाइलोजेनी. उनका कहने का मतलब है कि एम्ब्रियो, ऑन्टोजेनी मतलब डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो, एम्ब्रियो का डेवलपमेंट जो होता है दैट इज रिकैप्सुलेशन ऑफ फाइलोजेनी. रिकैप्सुलेशन का मतलब यहाँ पे मैंने बता रखा है आप लोगों को, दैट इज रिपीटेटिव और often just a second, yeah. Repetitive, it is not seen. Yeah. जो किसी भी ऑर्गेनिज्म के डेवलपमेंट या ग्रोथ के समय जो एवोल्यूशनरी किसी भी एवोल्यूशनरी प्रोसेस का रिपीटेशन हो रहा हो तो उसे रिकैप्सुलेशन बोलते हैं. ऑन्टोजेनी का मतलब एम्ब्रियो के डेवलपमेंट के समय जो भी एवोल्यूशनरी प्रोसेस का रिपीटेशन हो रहा हो, किसी भी एवोल्यूशनरी प्रोसेस. अब एवोल्यूशनरी प्रोसेस मतलब इसका मतलब ये होता है कि लाइक अगर मैं बात कर रही हूँ आपका बेसिक, अगर एम्ब्रियो के लेवल पे सबका जो ऑर्गन्स रहता है या सबका जो वहाँ पे ग्रोथ या डिविजन हो रहा है दैट इज ऑलमोस्ट सेम. तब जाइगोट के बाद जो एम्ब्रियो फॉर्म्ड होता है तब तक का डिविजन इज ऑलमोस्ट सेम इन एवरी वर्टिब्रेट, एवरी ऑर्गेनिज्म. बट आफ्टर दैट जब फर्दर डिविजन्स होते हैं तो दैट डिस्टिंग्विश फ्रॉम ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म. इसीलिए उन्होंने जो अर्नेस्ट हैकेल ने जब वॉन बेयर की लॉ को आगे प्रोसीड किया तो उन्होंने बोला ऑन्टोजेनी प्रोसीड रिकैप्सुलेट फाइलोजेनी. और यहाँ पे उन्होंने एग्जांपल दिया है दैट इज प्रोटोनीमा एंड जस्ट यस. अगर आप लोगों ने मॉसेस और फर्न के बारे में पढ़ा होगा तो उनके गैमेटोफाइट स्टेज पे उनका जो स्ट्रक्चर होता है दैट इज वेरी सिमिलर टू द ग्रीन एल्गी, राइट. सो उन्होंने ये बोला कि कहीं ना कहीं एल्गी और कहीं ना कहीं एल्गी और टेरिडोफाइट्स या एल्गी जो है दैट इज द एंसेस्टर ऑफ ब्रायोफाइट्स और टेरिडोफाइट, बिकॉज ब्रायोफाइट्स के बाद टेरिडोफाइट्स आता है. और मॉस और फर्न्स जो है दे बिलोंग टू
दिस मॉस एंड फर्न बिलोंग टू ब्रायोफाइट्स। तो उन्होंने ये बोला कि कहीं ना कहीं ये लोग अपनी सिमिलैरिटीज, इनका जो रिसेंबल है, इनका जो ओरिजिन है, इनके जो स्ट्रक्चर्स है वो हमें ग्रीन एल्गी की तरह दिखते। तो उस बेसिस पे उन लोगों ने बोला कि दे शोज द ancestor algae, they are seems to be the algal ancestor of the bryophytes and pteridophytes. अगर मैं जिम्नोस्पर्म की बात करूँ तो जिम्नोस्पर्म जनरली they are independent of water in fertilization. जबकि अगर मैं जिम्नोस्पर्म, जैसे दो जिम्नोस्पर्म की बात को लाइक साइकस और जिंको, सो उनके पास क्या होता है, फ्लैजिलेटेड स्पर्म्स होते हैं। फ्लैजिलेटेड स्पर्म का जनरली काम क्या होता है कि उनको वाटर में फर्टिलाइजेशन के लिए, मूवमेंट के लिए फ्लैजिला चाहिए होता है, ठीक है। जबकि टेरिडोफाइट्स में ऐसा होता है, टेरिडोफाइट्स में ऐसा होता है, जबकि जिम्नोस्पर्म में they said that they didn't require water for their fertilization. ब्रायोफाइट से देखा जाए तो they required water for their fertilization, जबकि जिम्नोस्पर्म में they didn't required, but जिम्नोस्पर्म में अगर मैं साइकस और जिंको की बात करूँ तो have they have that flagella, ठीक है, they have that flagellated sperm so that for the movement right in the water. तो ये कुछ डिफरेंसेस है। सो उन्होंने ये बोला कि डेफिनेटली टेरिडोफाइट्स और जिम्नोस्पर्म का भी एक कोई ना कोई एंसेस्ट्रल कोई ना कोई कॉमन एंसेस्टर है। सो अभी मुझे एक बात बताओ, यहाँ तक पढ़ाया हुआ चीजें समझ में आई है या नहीं? यस, सोनाली, प्रीति, समझ में आया? Ma'am, in the last slide, could you please explain the fourth point again? Which point, dear? Ma'am, before recapitulation one. Okay, this law held, right, that point, right? Okay, all right, I'll explain it once again what this ontology recapitulate phylogeny means. Okay, so see, first of all we should know that what ontogeny means. Ontogeny means development of embryo, ठीक है, and it is recapitulation of phylogeny. recapitulation का मतलब होता है कि किसी भी evolutionary process में या what I can say या किसी भी डेवलपमेंट में, फॉर एग्जांपल मैं एम्ब्रियो का ही ले लूँ, तो एम्ब्रियो के जो डेवलपमेंट है उस समय जो भी इवोल्यूशनरी रिपीटेशन का मतलब जो आपका कॉमन एंसेस्टर से पास ऑन हो रही है रिपीटेशन, और वो रिपीट ही हो रही है, इट इज नॉट चेंजिंग, राइट। सो वो जो चेंज नहीं हो रही है, जब एक प्रॉपर ग्रोथ या डेवलपमेंट के समय जो चीज आपकी चेंज नहीं हो रही है, दैट इज, और स्पेसिफिकली वो एवोल्यूशनरी चेंज होनी चाहिए, और वो रिपीट हो रही है, तो दैट इज कॉल्ड रिकैप्चुलेशन। तो यहाँ पे अगर मैं बात करती हूँ, यहाँ पे इन्होंने जो अर्नेस्ट हैक्कल ने बोला कि दिस इज व्हाट कॉल्ड फाइलोजेनी, तो ये ऑन्टोजेनी रिकैप्चुलेट, उन्होंने ये बोलने की कोशिश कर रहे हैं कि आज तक व्हाई इट इज कॉल्ड सो कि एम्ब्रियो ऑलमोस्ट सबका सेम होता है, ये ऐसे इसलिए बोला जाता है कि एम्ब्रियो में, टिल एम्ब्रियो वी कैन easily predict, we can easily can say that कि ancestral repetition हो रहा है, कि कॉमन जो हमारे एंसेस्टर है उनकी कुछ सिमिलरिटीज वी कैन ऑब्जर्व, और उन सिमिलरिटीज के बेसिस पे वी कैन नॉट क्लियरली डिस्टिंग्विश कि ये एम्ब्रियो बर्ड का है, ये एम्ब्रियो लायन का है, ये एम्ब्रियो ह्यूमन का, बिकॉज दे शो मोस्ट ऑफ द सिमिलरिटीज। अभी समझ में आया? Yes, ma'am. ओके, और किसी को कोई भी प्रॉब्लम है तो जस्ट फील फ्री टू आस्क मी। यस, सबको, बाकी किसी को कोई डाउट नहीं है? किसी को कोई डाउट नहीं है?
और सबको समझ में आ गया? मेघा, नेहा, प्रीति, सोनाली, अथर? Yes, ma'am. All right, so we'll stop today. For इसके बाद we'll go with other thing like अगर divergent हो चुका है या this thing happen. So हाँ, हम लोग इसके बाद will do with biogeographical evidences and फिर हम लोग anthropogenic evidences क्या होते हैं, फिर आगे हम लोग adaptive production. So overall if I say तो मुझे 2-3 लेक्चर चाहिए होंगे टू कंप्लीट दिस चैप्टर. ऑलराइट, सो और कोई डाउट अपार्ट फ्रॉम दिस? कोई डाउट नहीं है? बायोलॉजी के बाकी जो सर ने पढ़ाया ऑलमोस्ट उसमें कोई भी डाउट नहीं होगा, सही से हो गया होगा, राइट? चलेगा फिर विल स्टॉप हियर एंड नेक्स्ट लेक्चर विल डिसाइड कि अगर फ्राइडे को जनरली सर फ्राइडे को ही लेक्चर लेते हैं ना? Yes, ma'am. अच्छा, if he had completed that enhancement in food production, then you can suggest them to go with evolution. This is environment जो fourth chapter से ना, he can start with that. You can suggest them Yes, because it's depend on them. Okay, if you want him to teach biotech for you guys, then you can tell him that you teaches us biology because biotech part, because whatever topic you want to teach, just let them teach, because बाकी जो भी part रहेगा I'll share. Once I complete with the evolution, we'll go with that. And yes, as per our biology syllabus, definitely would be able to cover the syllabus by October of third week of October. All right. yes, ma'am. Okay, then we'll stop here. And I guess nobody has any doubt. Just go. After ending of the session, just go through the points. वैसे भी ये recording है, so you'll get it. Sir will provide you this on your this जहाँ पे भी he used to provide you, he'll provide you and go through this note. Once you go through by single reading is also enough. You just remember the key point that is mentioned over here, and rest chapters तो आपकी बहुत अच्छे से हो गए because multiple times we had taken its test, or either it be MCQs and or subjective types. So also with these chapters, after finishing this chapter, we'll keep exam like this, the previous one, so that these chapters also become good, and you get go through them as well very nicely. So all right, we'll just stop here, and thank you so much. I hope you all understood what I'm trying to tell you. All right, thank you so much. Thank you, ma'am. Happy Teachers Day. Thank you, dear. I wish you all receive so many success in your life. Thank you.